Saira ma'am. Shall we start our class? Okay. Let us join our hands for chanting Omkar. Start. Saira. Now, have you understood the chapter? Second one. What is the chapter? Diversity and Diversity. Ma'am, discrimination. yes, diversity and discrimination. And I hope you all are very well means able to understand about these two topics or the terms. What is diversity and what is discrimination? Have you understood? Yes, ma'am. Okay. So still there are 18 participants. Let us wait for 1-2 minutes more. Then I'll share my screen. Okay. Anything else you want to discuss about this chapter? Anything special? Anything peculiar? Thing that you don't understand? Anything? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसमें? भेदभाव. Discrimination का means होता है भेदभाव on the basis of the prejudice and stereotypes. जो हम भेदभाव करते हैं ना, differences create करते हैं. साईराम बेटा, साईराम. My voice is not coming. Why? Am I audible or not? Tanmay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm audible. Audible. You are audible. Ma'am. Tanmay, now? Am I audible, Tanmay? Okay. Shall I share my screen now? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. I'm sharing my screen now. Okay, ma'am. Okay. Can you see my PPT, beta? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. fine. Yes, ma'am. Okay. My humble salutations at the lotus feet of Sai. Now, this is our second chapter, diversity and discrimination. Okay. You can see from the picture also, this black boy is being discriminated by the white people. Okay. Now, coming to the book exercise. Okay. Now, the first question was in your book, match the following statements in a way that challenges stereotypes. Now, see, we have read many more things about stereotypes, like stereotype about boys and girls, stereotypes about villagers and city people, stereotype about a particular place, people living in a particular place, people performing things in a different manner. Okay, so many stereotypes are there, but these are some challenges. Okay, about stereotypes. Now let us see what are they. First one, two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone. Which is the correct option? First. Ma'am, third. Third one, to speak with her daughter Third. who had just returned from school. Okay. Now, first option, third option is the correct one. Two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone to speak with a daughter who had just returned from school. What does this show? In which manner
it is challenging the stereotype. What was the challenge here? हाँ? कौन सा चैलेंज है, क्या स्टीरियोटाइप है इन लोगों के बारे में या इनके बारे में, एनीथिंग? Ma'am, on a wheelchair to collect his prize. नो 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 नो, ये जो दो पॉइंट आपने मैच किए ना, आई वांट टू आस्क अबाउट दिस. कैन यू एक्सप्लेन दीज 2 पॉइंट्स? इज देयर एनी स्टीरियोटाइप you are getting in these 2 points which you have just joined? This is the life of Ma'am, surgeon. surgeon. 2 surgeons. 2 surgeons. Okay, where are they? According Ma'am, to They were sitting down in the hospital. in the hospital. Ma'am, lunch. And this hospital will be in कहाँ होगा हॉस्पिटल जहाँ पे ये सर्जन्स होंगे? Ma'am, in city. In city. So what is the stereotype you read about in the city? See, in city there is a stereotype what we heard or we read about, that people in city, they are very busy. Okay, so these 2 surgeons, these are the doctors, okay, and their life is too busy, but still one doctor, one surgeon, he got some time to speak with her daughter who had just returned from the school. What does this shows? Ma'am, stereotype. हाँ, तो क्या बता रहा है? उसने अपना लंच का टाइम जो था उसमें से अपनी बेटी को फोन लगाया बात करने के लिए, जो घर आई है स्कूल से, तो ये क्या बताता है? आगे Ma'am, भी he loves her. he loves her, और इसके लिए वो क्या कर सकता है? Because he loves her daughter, loves his daughter very much. क्या करेगा वो? क्या कर रहा है? एक मोबाइल कॉल कर सकते हैं. मोबाइल कॉल कर सकता है, क्या शो करने के लिए? Ma'am, love. कि वो सेफली घर आ गई है कि नहीं. घर आ गई Yes, है, ma'am. तो वो क्या चीज है उसका? Ma'am, कि वो कुणाल के घर आ गई. Ma'am, stereotype क्या? Okay, try to understand it. In city, people are too busy with their work and they don't have time for their family members also. Okay, but here this stereotype is being challenged by the surgeon. क्या किया उसने? उसने अपने लंच टाइम में से टाइम निकालकर अपनी बेटी को फोन लगाया, ये साबित करने के लिए कि दो आई एम वेरी बिजी बट आई हैव टाइम फॉर यू ऑल्सो, फॉर माई फैमिली ऑल्सो. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, clear है. मेरी वॉइस नहीं आ रही है मैम आ रही बेटा. डायरेक्शन चेंज करो तन्मय, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करो बेटा, अपने सिस्टम की डायरेक्शन. करके आया तो सही हो गया. हाँ, थोड़ा सा चेंज करोगे ना बेटा, यू विल गेट. हाँ, आपका भी आवाज ब्रेकिंग हो रहा था, वो आपकी दो आवाज आ रही फिर सही हो गया. हाँ. है. आपकी दो बार आवाज आ रही है. मेरी दो आवाज, अगर आपके पास दो सिस्टम कहीं ऑन होंगे तभी आवाज आएगी बेटा, डबल डबल इको होगा. मेरे यहाँ दो सिस्टम नहीं है, इस रूम में नहीं है. एटलीस्ट माय डॉटर इज मैम स्टडीइंग. वेदांश का माइक ऑन है इसलिए. कहीं पे भी दो चीज, या तो माइक ऑन होगा या दो चीजें ओपन होगी, जो कि ओपन होगी. तो अगर आपका माइक म्यूट मोड पे है देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई थिंक सो. ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इट क्लियर टू ऑल? Now see, in this one more stereotype, we can see that daughters are not valued at home. Here, what we are seeing that this surgeon is valuing his daughter also. वो अपनी daughter के लिए भी परेशान है, उसको प्यार करता है और उसके लिए concerned है, उसकी चिंता रहती है उसको. इसलिए उसके स्कूल के लौटने के टाइम पर उसने अपने लंच टाइम में से टाइम निकालकर उसको कॉल किया कि वो घर पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई. आर यू गेटिंग दिस? ये चैलेंजेस हैं जो हमने अभी पढ़े थे बुक में कि सिटी में लोगों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कौन कौन से स्टीरियोटाइप सोसाइटी में बने हुए हैं.
ये चैलेंज कर रहे हैं, ये पॉइंट्स जो हैं जो हम मैच कर रहे हैं ये चैलेंज है, मतलब उनको ब्रेक कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप जो मूड है उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो कैसे ब्रेक कर रहे हैं ये आपको अंडरस्टैंड करना बेटा, देन ओनली you will be able to solve the question. Okay, now the second one is the boy who won the drawing competition went to the dais. ठीक है, हाँ went to the dais, कैसे गया वो? On a wheelchair to collect Yes. On a wheelchair, ma'am. Yes, on a wheelchair On a collect his prize. Okay, now tell me what does this show? wheelchair to collect his prize. हाँ, तो वो क्यों व्हील चेयर पे गया है, तो ये क्या बताता है अबाउट दैट बॉय? क्या बताता है? वो व्हील चेयर पे गया तो उसके बारे में उसे क्या पता चलता है? मैम कि उसने कंपटीशन में भाग लिया था तो फिर वो बहुत दौड़ा होगा जिसकी वजह से उसके बहुत ज्यादा पैर दुख रहे होंगे, तो इसलिए वो व्हील चेयर पे बैठ के प्राइज लेने गया। What was the competition? I'm drawing. ड्राइंग कॉम्पिटिशन। हाँ, इसके अलावा मैम वो जब कहीं उधर सबमिट करने जा रहा होगा तो कहीं पे गिर गया उसके होगा। पैर में प्रॉब्लम होगी। हाँ तो मैम वो जब उसके पैर में वो मैम वो जब वो मैम मतलब वो लिखने जा रहा होगा मैम और वो बैठ रहा होगा, जब मैम उसका पैर वो मोच मार गई होगी तो फिर वो व्हीलचेयर से हाँ तो ठीक है, मैम वो डिसेबल होगा। यस वो डिसेबल है, तो उसने क्या प्रूव किया? What did he prove? मैम कि वो व्हीलचेयर पे भी रहकर लेकिन दिमाग का यूज कर सकता है। Yes, वो व्हील चेयर पे रहकर भी being disabled और being special, a child of special need, उसको स्पेशल मैम इसका एक कार्टून भी था बुक में। मे बी उसके पैर खराब हैं लेकिन वो और चीजों में बहुत अच्छा है। He can do much more thing. मैम उसके दिमाग में यही चला कि मैम वो नेगेटिव नहीं सोचा, मैम वो सोचा कि कर सकता हूँ मैं, वो नेगेटिव बना सकता हूँ। नेगेटिव हम सोचते हैं बेटा कि जिसके पैर खराब हैं, जो किसी चीज में वीक है, जिसको प्रॉब्लम है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं हो सकता। सो दिस शोज कि अगर बच्चा व्हील चेयर पे है, वो व्हील चेयर से अपना काम करता है, देन ऑल्सो दैट पर्सन कैन डू मेनी मोर थिंग्स एंड कैन शो दी कैपेबिलिटी ऑफ हिज और हर। ओके, कि वो क्या क्या कर सकता है। तो उसका कंपटीशन में विन करना ये शो करता है कि वो बेशक चल नहीं सकता पर वो और सारी चीजों में अच्छा है या हो सकता है। सो वो क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है इस स्टीरियोटाइप को कि जो व्हील चेयर पे होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चैलेंज ब्रेक हो गया। तो हमको ये चैलेंजेस को ब्रेक करता हुआ शो करना है कि ये जो मैच कर रहे हैं ये चैलेंजेस हैं, पर जिसने उस काम को किया उसने कैसे उस चैलेंज को ब्रेक किया, क्या चैलेंज था वो। नाउ सी थर्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड suffers from a chronic asthma. क्रॉनिक अस्थमा, बहुत भयंकर उसको अस्थमा की सांस की बीमारी है। मैम वो बीच बीच में वो लेना पड़ता है। हाँ, फास्टेस्ट एथलीट है वो, वर्ल्ड का फास्टेस्ट एथलीट है और उसको बीमारी कौन सी है? सांस की। जबकि सांस की जिसको बीमारी होती है, जिसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, वो उनको चलने में ही उनकी सांस फूलने लगती है। लेकिन ये दौड़ने वाला व्यक्ति, ये दौड़ने वाला है, ये रनर है और ये फास्टेस्ट रनर ऑफ द वर्ल्ड है, फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड है और इसको ये बीमारी है। तो क्या बता रहा है ये? क्या बता रहा है ये चीज? क्या शो करती है आपको कि फास्टेस्ट एथलीट को एस्थमा हो सकता है? क्या बता रहा है ये? व्हाट डज दिस शोज? कि उसको अस्थमा होने के बाद भी वो सबसे तेज एथलीट है इन द वर्ल्ड। गुड। मतलब हम इन सब चीजों को एक्सक्यूज के तौर पे लेते हैं, वी टेक इट एज एन एक्सक्यूज कि मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है, आई कांट वॉक, आई कांट रन, मुझे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। बट वो जो इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित है, उसको अस्थमा है, वो भी बहुत ज्यादा सांस में परेशानी है, स्टिल ही रन्स वेरी फास्ट।
नाउ ही इज ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप कि जिनको अस्थमा होता है वो दौड़ नहीं सकते, ठीक है। मैम बहुत से लोग ना मैम वो बेटा ये जो चीजें होती हैं, मैम एक्सक्यूजेस करते हैं कि उनको हाँ, प्रेशर लगी जो है। भी चीजें होती है ना, ये जो हमारी फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं वो हमारे को मन से वीक करने की कोशिश करती हैं, और लोगों की बातें भी। अगर हम मन से पक्के हो जाएं तो यू हैव रेड अबाउट इला आल्सो, इला सचानी के बारे में 5th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है कि हाउ शी यूज्ड टू डू एम्ब्रॉयडरी विद हर लेग्स, ठीक है। आपने कभी कोशिश किया, कभी सोचा भी होगा कि हम स्पून भी पकड़ लेंगे पैरों से, नहीं तो सोच सकते, बट ऐसा हो सकता है, बस सोचने की देर है, ओके। तो ये सारे स्टीरियोटाइप हैं। नाउ नेक्स्ट वन, शी वाज नॉट दैट वेल ऑफ मतलब रिच, बट हैड अ ड्रीम। व्हाट वाज द ड्रीम? To become an astronaut, which she did. टू To बिकम become an एन astronaut. एस्ट्रोनॉट व्हिच शी डिड। हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोचेंगे अगर गरीब हैं तो? हम क्या सोच सकते हैं अगर हम गरीब हैं तो? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पापा के पास तो पैसे नहीं है, हम मैं तो कुछ भी नहीं नहीं कर कर सकते। सकता। या लेकिन उसमें इतनी काबिलियत थी कि उसने सारे जितने भी बंधन थे सबको तोड़कर अपने सपने को पूरा किया। Who was she? कल्पना चावला। यस, वेरी गुड। कल्पना चावला। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि पैसा या हमारी पावर काम आए। हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारी जो सोच है, हमारा जो निश्चय है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बाकी सारी चीजें छोटी हो जाएं या वैल्यू नहीं रह जाए किसी की भी। सबसे पहली बात है आपको डिसाइड करना। इफ यू हैव डिसाइडेड यू कैन डू, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो डिसाइड, डिटरमाइन, ठीक है। डिटर्मिनेशन इज द बेस्ट थिंग। आपने कुछ ठान लिया है अगर सच्चे मन से, और आपने ये सोचा है कि कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस, तो कोई भी उसको इनकम्प्लीट नहीं रहने दे सकता। तो these were the challenges which these people have broke. Now these are the answers which we have already discussed. Coming to the second question, have you understood the first one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Good. ma'am. Now see second question. I have divided the question into two parts. Okay, बड़ा सा question था तो मैंने दो पार्ट में इसको कर दिया है, A and B, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी डिफिकल्टी होती है इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए 2 पार्ट्स में कर दिया। यू कैन डू इट इन 2 पार्ट्स ओनली, बट अगर क्वेश्चन एक आ जाता है तो यू नो हाउ टू राइट इट। बता सकते हैं? हाँ, how can the stereotype that girls are a burden on their parents affects the life of a daughter? Now try to understand the Can I question. give answer? Wait a little बेटा। क्वेश्चन है कि स्टीरियोटाइप जो है गर्ल्स के लिए बनाए हुए हैं सोसाइटी में, है ना। सोसाइटी में गर्ल्स को ये करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये बहुत सारे स्टीरियोटाइप बने हुए हैं, पहले से ही धारणाएं बना रखी हैं। इससे गर्ल्स के लिए क्या स्टीरियोटाइप है? गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स, लड़कियां अपने माता पिता पर बोझ होती हैं, ठीक है। ये एक स्टीरियोटाइप है। घर में अक्सर जो इलिटरेट पीपल हैं वो घरों में हमेशा लड़कियों को बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि कैसे इस बोझ को दूर किया जाए, उनकी शादी ब्याह जल्दी करके निपटा दिया जाए, उनको दूसरे घर भेज दिया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियों की शादी में दहेज देना पड़ता है, फिर उसकी परवरिश भी ऐसे करनी पड़ती है, उसको सारे काम वगैरह सिखाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, ये एक धारणा बनी हुई है हमारी सोसाइटी में विच इज नॉट एट ऑल करेक्ट। लेकिन ये जो स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स, लड़कियां अपने माता पिता पर बोझ होती हैं, ये एक स्टीरियोटाइप है। इससे लड़कियों के जीवन पर क्या असर पड़ता है ये बताना है। हाउ डू दीज गर्ल्स अफेक्टेड बाय दिस स्टीरियोटाइप? नाउ अगर आप सोच कर बोलोगे ना तो यू विल एबल टू रिमेम्बर इट।
अगर आप कहीं से कॉपी डाउन करके बोलोगे देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया है कि स्टीरियोटाइप क्या है, कि गर्ल्स आर बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स थिंक दैट द गर्ल्स आर बर्डन ऑन देम, उनके उनके घर में एक बोझ है, और वो सन्स को लेकर ऐसा नहीं सोचते, चाहे उनके ऊपर सन के ऊपर उनको बहुत सारे पैसा खर्च करना पड़े, दे डोंट थिंक लाइक दैट इन मेनी ऑफ द फैमिलीज। बट गर्ल्स के लिए ऐसे कई फैमिलीज में सोचा जाता है, कई फैमिलीज में, नॉट ऑल फैमिलीज, बिकॉज नाउ डेज पेरेंट्स आर एजुकेटेड एंड दे नो गर्ल्स कैन डू व्हाट बॉयज कैन डू। सो इससे लड़कियों की लाइफ पर क्या असर पड़ता होगा, ये सुन सुन के, ये सोच सोच कर कि हम माता पिता पर बोझ हैं, कैसा लगता होगा, क्या सोचती होंगी वो। मैम ऐसा करना है हरियाणा में मैम। हाँ ये प्रणव, मैम वो लोग मैम वो लोग सोचते होंगे कि कहीं दूर चले जाए, दूर चले जाए, यस या प्रणव, फिर कहीं पे ऐसी जगह चले जाए कि कोई ढूंढ ही ना पाए। हाँ मैम सी डज नॉट हैव access to quality education। प्रणव आप कुछ बोल रहे थे। मैम ऐसा करना है हरियाणा में हुआ, ऐसा रिपीट योर आंसर। हाँ करना है। Now see, girls have been treated as a burden since time immemorial। बहुत समय पहले से ही सोसाइटी में ये चीजें चली आ रही हैं। हाँ यस बेटा। मैम सी डज नॉट हैव अ जिम। हाँ वो सपने ही नहीं देखेगी, ठीक है। Even today their condition has not changed in many of the families in our society we see such type of stereotype। Okay, now whether it is home or outside they are not given due opportunity। क्या है, जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है ना तब उसको दे देते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता है। सो आज भी उसको कई जगहों पर दे आर नॉट गिवन ड्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको अवसर नहीं दिया जाता है कुछ काम करके दिखाने का। अगर वो बोले कि मुझे बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है तो बोलेंगे अरे अभी घर के काम सीख लो, ड्राइविंग बाद में सीख लेना, या बता देना कहाँ से सीख ली तुमने, है ना, उल्टा डांट लगाएंगे उसको। ठीक, अगर वो बोलती है कि मुझे बहुत अच्छे से, मैं तो ये बनना चाहती हूँ, सपोज उसने बोला कि मुझे तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, तो बोलेंगे नहीं पहले घर में जो रोटी पानी का काम है ना वो सीखो, क्योंकि तुम्हारी शादी होगी तो तुमको खाना बनाना पड़ेगा, किचन के काम आने चाहिए तुमको। ठीक है, तो ये है कि उनको घर में वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती जो बाकियों को, जो उनको मिलनी चाहिए, जो बॉयज को मिलती है जनरली वो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती आज भी। देन द मेंटल सेटअप ऑफ द पेरेंट इज सच that it never accepts the birth of a daughter wholeheartedly। In many of the houses parents are not accepting the birth of a daughter wholeheartedly। उनको खुशी नहीं होती है बेटियां घर में आती हैं जब, ठीक है, वो तो एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि उनकी बेटी है, लेकिन ऐसी बहुत कम फैमिलीज मिलेंगी जहाँ पे बेटियों के लिए ही इच्छा की होती है उन्होंने। पेरेंट्स ने ये सोचा होता है कि हमें लड़की ही चाहिए, भगवान लड़की ही देना। मैम बहुत सारे जो मैम जैसे जो लोग सोचते हैं ना कि हमें नहीं चाहिए लड़की, तो वो क्या कहते हैं ना, वो हमेशा उनसे गुस्से में ही बात करते हैं, मारते हैं बहुत। हाँ बिल्कुल, वो उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनसे प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं उनका करते, उनको खाने पीने के लिए भी बहुत नहीं। ठीक है, और अशोकनगर में हमारे साइड में एक है मैम, उधर मैम उधर एक मैम उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है मैम। मतलब वो जो बेटी है मैम उसको ना स्कूल पढ़ाते हैं ना मैम, खाना देते तो एक टाइम ही देते मैम, कहते तुम ज्यादा खाना खाती हो ये मैम। और जो 2 बेटे हैं उनको तो मैम मतलब सब चीज है। बिल्कुल, ये तो अक्सर आपको आसपास के घरों में ना, जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे बेटा, यू विल फाइंड सच इंसिडेंट्स आर स्टिल टेकिंग प्लेस इन आवर सोसाइटी। तो इसके अगेंस्ट किसको खड़ा होना पड़ेगा? गर्ल्स को। पेरेंट्स अगर एजुकेटेड है देन इट इज ओके, वेयर द पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड
they are living in a joint family, then such type of conditions are there which girls are facing. ठीक है, इसके अलावा जैसा आप मानव ने बताया कि ड्रीम्स नहीं देख सकती, मतलब उनकी कोई ड्रीम ही नहीं होती है, वो सोचती हैं जो मिल गया ठीक है, वो भी कोशिश करना छोड़ देती हैं. दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस आफ्टर इवनिंग. ओके, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनको करने को नहीं मिलती, और गर्ल्स इससे कैसी हो जाती है, डिसअपॉइंटेड, उदास रहती हैं. दे बिकम सैड, उनका अपना कुछ भी नहीं है, उनको पता है कि ना इस घर में है ना दूसरे घर में मिलेगा उनको कुछ भी, तो वो बहुत ही सैड हो जाती है, अनहैप्पी हो जाती है मेनी अ टाइम्स. जैसे उसने अभी वेदांश ने बताया कि कई बार वो सोचती इतनी दूर चले जाएं कि कोई हमें ढूंढ ही ना पाए, हम किसी के पास ही ना आ पाए, तो ऐसी भी चीजें उनके मन में कई बार ख्याल में आती हैं. ठीक है, तो गर्ल्स की लाइफ कैसी होती है, बैडली अफेक्टेड. यस माना. मैम वो फील हरियाणा में गर्ल्स को मार दिया जाता था. हाँ बेटा, गर्ल्स को उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि हरियाणा में या ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे, या कास्ट भी है ऐसी बहुत सारी जहाँ पे गर्ल्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती एंड दे आर ट्रीटेड एज अ बर्डन फॉर द फैमिली. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कभी हाँ यस कभी वहाँ पर गर्ल्स को मार दिया जाता था. आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा. प्रणव आप बोल रहे हो ना बेटा, आराम से बोलो, क्या क्वेश्चन. मैम कभी कभी वहाँ पर गर्ल्स को मार दिया जाता था. हाँ, पहले ये ज्यादा होता था, अब क्योंकि एजुकेटेड फैमिलीज हैं तो ये सब काम नहीं होते हैं. ठीक है, पर पहले ऐसा माना जाता था कि गर्ल्स होती थी तो कई बार उनको पैदा होते ही मार भी दिया जाता था. ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल? क्या क्वेश्चन है और कैसा इसका आंसर है? यस मैम. नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, इमेजिन दिस सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन की गर्ल्स बर्डन है फैमिली पे, and list at least 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house. अब भी जो हमने डिस्कस किया था ना वही सारे पॉइंट्स हैं, है ना, इसमें 5 है, आप और भी ऐड कर सकते हैं. मेनी मोर पॉइंट्स यू विल गेट. गर्ल्स वुड फील डिस्करेज्ड, उनकी हिम्मत. मैम ये वाला लिखना है या मैम इससे पीछे वाला? वो 2 पार्ट है बेटा, क्वेश्चन के 2 पार्ट है. हाँ मैम कोई भी लिख लें? दोनों पार्ट लिखने हैं आपको. मैंने क्वेश्चन को छोटे छोटे में डेवलप कर दिया है, 2 पार्ट को 2 अलग अलग क्वेश्चन के रूप में बना दिया है, सो दैट आंसर आपको बड़ा बड़ा सा नहीं दिखेगा. ठीक है, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट है, देखो, गर्ल्स वुड फील डिस्करेज्ड एंड दे वुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज. अगर वो पढ़ने भी जाती है तो उसके पास यही दिमाग में रहता है कि मुझे खाना बनाना है, पापा डांटेंगे, या मैं क्या करूं, मैं तो बोझ हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती है जो भी करने की, वो मुझे कराया जाता है, मेरी इच्छा से मैं कुछ नहीं कर सकती. ऑल देयर ड्रीम्स टू अचीव सेपरेट आइडेंटिटी इन दी सोसाइटी वुड बी शैटर्ड. वो कुछ करना चाहती है, जो ड्रीम्स देखती है, जो सपने देखती हैं कि हम भी कुछ बनकर दिखाएंगे, वो सब की सब टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं. Sometimes girls are not allowed to join any school or college. कई बार स्कूल भी नहीं जा पाती और कई बार स्कूल तो जाती हैं पर कॉलेज नहीं जा पाती, because colleges are far away from the villages or from their houses, and parents they don't, क्या नहीं करते, उस पे विश्वास नहीं करते. They don't rely on their girls. उनको विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कि ये मजे करने के लिए जाएगी, कॉलेज बिगड़ जाएगी, इसलिए वो भेजना पसंद नहीं करते. They feel helpless even in their parents' house. तो अपने मन की बातें लड़कियां क्या करती है, अपने मन में ही रखती हैं, अपने पेरेंट्स को भी बता नहीं पाती हैं. जब उसको ये पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते. Even marriage does not bring fortune to the girls all the time. ठीक है, मैरिजेस के बाद कई बार हम देखते हैं कि उसके सास ससुर, उसका जो हस्बैंड है, उसको जला देते हैं दहेज के लिए, डाउरी के लिए, पैसे के लिए. ठीक है, कई घरों में क्योंकि उनको पता है कि आजकल लॉज बन गए हैं और अगर लड़कियां कंप्लेंट कर दें तो द इन लॉज विल बी इन जेल. ओके, तो इसलिए कई जगह पे जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, एजुकेटेड
लड़के होते हैं वो अपनी वाइफ से बहुत अच्छा से ट्रीट करते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इल ट्रीटेड नाउ अडेज ऑल्सो। ठीक है, ऐसा लगता है कि लड़कियां तो सिर्फ काम करने के लिए ही बनी हैं, बहुएं सिर्फ काम ही करेंगी, उनको किसी के साथ बैठकर हंसने खेलने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सोच सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, यू कैन राइट योर ओन पॉइंट्स। अगर आपने कहीं फील किया है इस चीज को, देखा, जैसे मानव बोल रहा है कि अशोकनगर में उसके आस पड़ोस में, यू कैन राइट योर ओन पॉइंट्स ऑल्सो, यू कैन ऐड पॉइंट्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, what does the constitution say with regard to equality? Now again this is a big question, I divided into two parts. First part, what does the constitution say with regard to equality? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया इक्वालिटी को लेकर, बराबरी को लेकर, समानता को लेकर? व्हाट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? किसी को भी याद हो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा की थी, प्रीएम्बल बताया था आपको, इंट्रोडक्शन पार्ट दो। मैम की सब सारे लोग इक्वल हैं और कोई बड़ा छोटा नहीं है। वेरी गुड, वेल डन। कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, हमारी पूरी कंट्री में सब इक्वल है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शेल, स्टेट कंट्री को बोला जाता था, ठीक है, स्टेट मीन्स कंट्री, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है भारत के नागरिक, उस देश के रहने वाले, ठीक है, सिटीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और रीजन। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम इनइक्वालिटी नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। Then who are we to discriminate the people on the basis of these things? ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। क्या आप अपने फ्रेंड्स में कभी इस बारे में लेके चर्चा करते हो? नहीं ना। हम फ्रेंड्स कितने अच्छे से रहते हैं, चाहे कोई किसी भी कास्ट का, हमें पता भी नहीं कौन किस कास्ट का है, कौन से रीजन का है ना, फिर भी हम बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी का इफेक्ट हम पर बहुत ज्यादा पड़ने लगता है और हम कट्टर भी होने लगते हैं कई बार, और कई बार इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, तो वी लिव टुगेदर एज अ फैमिली ऑल्सो। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अंडरस्टैंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा एक ही चीज लिखी है, वी आर ऑल इक्वल बिफोर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है कि कानून के सामने हम सब एक हैं, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म, रंग, रूप, किसी भी चीज के। इसी का सेकंड पार्ट था, क्वेश्चन लंबा था, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो मैम, इसलिए अपने रूल, मैम इंडिया की रूल बुक में यही लिखा है। हाँ, यस बेटा। Why do you think it is important for all people to be equal? Now tell me, if there will be no equality, what will happen? अगर आपके घर का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप 2 भाई बहन हो, 4 भाई बहन हो, अगर आपको इक्वली प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, तो आपको कैसा लगता है? आपके मन में क्या आता है? क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। मैं जब छोटी थी ना, तो दिवाली में पटाखे चलाने का मुझे बड़ा शौक था, क्रैकर्स का। आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, मैम अभी भी है मैं। हाँ, यस मैं जब मैम। छोटी थी तो मुझे पटाखे चलाने का क्रेज तो आज भी है, बट जब मैं बड़ी हुई और मैंने अंडरस्टैंड किया कि these crackers used to create lots of pollution, तो मैंने इसको अपनी तरफ से ही छोड़ दिया। मुझे बहुत साल हो गए मैंने क्रैकर्स नहीं जलाए। ठीक है, तो भैया मेरा बहुत सारे क्रैकर्स लेता था, एंड आई यूज्ड टू फाइट फॉर इक्वालिटी। पापा लेकर आते थे तो उनको लगता था कि भैया लड़का है तो वो क्रैकर्स अच्छे तरीके से जला सकता है, एंड बीइंग अ गर्ल आई कैन नॉट डू दैट। लेकिन मैं लड़ती थी और एक बराबर के क्रैकर्स का डिवीजन कराती थी। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि मैं तब तक चुप नहीं बैठती थी जब तक कि वो एक अनार भैया के पास है तो मेरे पास भी एक ही अनार होना चाहिए, भैया के पास ये बम इतने हैं तो इतने मेरे पास भी होने चाहिए, उसके पास इतने रॉकेट्स है तो मेरे पास भी इतने होने चाहिए। आई फॉट फॉर द इक्वालिटी देयर फॉर स्मॉल थिंग्स आल्सो। मैं बोलती थी कि मुझे अगर आप इक्वल दोगे तो मेरी मर्जी है, मैं भैया को दे दूंगी, बट आप इनइक्वालिटी मत करो मेरे साथ।
मुझे अच्छा लगता है क्रैकर्स जलाना, आप तो बांट दो, जितने बच्चे हैं सब में बराबर बांट दो, फिर आगे अगले की मर्जी है वो अपना शेयर किसी को भी दे या नहीं दे, ठीक है। यस मैम। तो ऐसा ही, मैम जब हाँ यस, मैम जब ना वो क्या कहते हैं पापा चॉकलेट लाते हैं ना, तो वो मेरा पीस बड़ा निकल जाता है, तो मेरी बहन लड़ती है मुझसे कि मुझे भी दो। हाँ तो ऐसी छोटी छोटी, तो इससे क्या होता है, अब दोनों में लड़ाई होती तो क्या होता है फिर, अच्छा लगता है क्या घर में, फैमिली में? No, ma'am. फिर फैमिली में क्या हो जाता है, नो मैम। क्या होता है फैमिली में? मैम लड़ाई होती है। लड़ाई होती रहती है, लड़ाई होने से क्या होता है, एक उधर मुंह फुला कर बैठेगा, एक उधर मुंह फुला के बैठेगा, गुस्से में बैठे रहेंगे, है ना। फिर बड़े दिन लगेंगे सॉरी फील करके, सॉरी भी नहीं बोलते जल्दी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है और हमारे जो फैमिली में है डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है ये छोटी छोटी लड़ाई से। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल होने को महत्व नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अगर आप सपोज करो कि कंट्री में इनइक्वालिटी, अगर जब हम सोचते हैं कि अगर कंट्री में सबको इनइक्वल मान लिया जाए, इक्वालिटी नहीं रहेगी, तो कंट्री में क्या होगा, व्हाट विल बी द सीन देन? हर जगह फाइट्स होंगी, यस मुझे ये मैम। नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, हर गवर्नमेंट जगह वैसी है, हम ठीक लोग है। लड़ाई करेंगे। हाँ सब लड़ाई करेंगे तो कंट्री में पीस नहीं होगा, और पीस नहीं हुआ तो इसका पड़ोसी देश भी हमारा फायदा उठा मैम सकते बहुत हैं। मैम न्यूज आती है कि मैम बहुत से जगहों पे अभी भी लड़ाई होती है। यस, तो क्या है कि जब गवर्नमेंट ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इक्वल बता दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी need to feel that all are equal before law according to the constitution, it is given in the constitution। क्यों? ओनली देन अवर सोसाइटी वुड डेवलप इन ट्रू सेंस। अगर इक्वालिटी होगी तभी हम प्यार से डेवलपमेंट की ओर जाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे और दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम नहीं देखेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी कंट्री की कितनी डेवलप कर रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, हमारी और दूसरी चीजें डेवलप कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ते रहेंगे, शांति नहीं रहेगी, सो देयर विल बी नो पीस इन द कंट्री। सो फॉर पीस in the country we need to feel that all are equal, it is our right to be treated equally and to be given due respect, it is our right to be given equal opportunities। हमें सभी के साथ इक्वल व्यवहार क्यों करना है? क्योंकि ये हमें राइट मिला हुआ है कि ऑल आर इक्वल एंड ऑल शुड बी गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट। सभी को रिस्पेक्ट करना है, वेदर ही और शी बिलोंग्स टू डिफरेंट कास्ट, इट इज आवर राइट टू बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और यह भी हमें राइट मिला हुआ है कि हम किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्रीड के हों, किसी भी रीजन के हों, किसी भी रिलीजन के हों, हमको किसी भी नौकरी को पाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं। हमको बस क्या शो करना है, अपनी कॉम्पिटेंसीज, अपनी एबिलिटीज। अगर हम एबल हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज पर हमारा अधिकार हो सकता है। बट ये नहीं कि आप अपर कास्ट के हो तो यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड द अदर वन इज फ्रॉम लोअर कास्ट, ही और शी वोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रीटेड इक्वली। इन एब्सेंस ऑफ ऑल दिस, अगर ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हमारी लाइफ हेल बन जाएगी, नरक जैसी बन जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया कि घरों में लड़ाई होने लगती है भाई बहन में, फिर बहुत दिन तक गुस्सा गुस्सा होते रहते हैं। और पर्सनालिटी वुड बी सप्रेस्ड। हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटीज है हमारी पर्सनालिटी की ना, वो सब की सब दब जाएंगी, सप्रेस हो जाएंगी, क्योंकि हम तो इसी लड़ाई में ही रह जाएंगे। Hence, we need equality so that we may go ahead, so that we may progress, we may prove ourselves helpful for the society। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम सभी को इक्वल समझे और लोग हमको इक्वल समझे। Is this clear now? Is this clear, Cherry? Yes, ma'am. यस मैम। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, इसके बस आंसर्स में हो सकता है आपको व्हाट्सएप करूं, आंसर्स नहीं व्हाट्सएप करूंगी। ये क्वेश्चन किसी एक एक बच्चे को दे दूं मैं चेंज करके, और आपको अपना अपना आंसर लिखकर मुझे वापस देना होगा। मैं किसी दिन करूंगी मैम इसको। पीछे वाली स्लाइड दिखा देंगी?
पीछे वाले ये, इसमें आप पॉइंट्स ऐड करते जा सकते हैं बेटा, यहाँ ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो छोटा छोटा आता है, दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू take only 2-3 points which are very very important. Okay, shall I proceed beta, move further? यस मैम। Okay, ठीक है। These are the situations कि ऐसी situations में आप क्या करोगे, तो ये आप बुक में से पढ़ेंगे और सोच के रखेंगे। मैं आपको कोई भी टॉपिक दे सकती हूँ, इमीडिएटली बोलने के लिए भी दे सकती हूँ, तो आप इन 5 टॉपिक पे अपने अपने पॉइंट्स प्रिपेयर करेंगे एंड अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, यू विल नॉट शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपने पॉइंट्स को आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, योर पॉइंट शुड बी यूनिक, आप क्या करेंगे। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, दीज आर ऑल फ्रॉम बुक। ओके, द नंबर ऑफ मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, टाइम इज देयर बेटा, हमें बुक में ही करना है। ये बुक में नहीं है, बुक में से लाइन ढूंढी हुई है बेटा, ठीक है। Shall I take 5 minutes more? पूरा तो नहीं होगा, or if you wish, I will take in the next class. What do you say? Shall I end the session? Session end कर दूं? No. Time हो गया क्या? No, ma'am. क्या करना है? Run to Continue? the house. Okay. Now let us see. Yes, ma'am. टाइम 45 है। 45 हो गया बेटा? नो मैम, अभी 3:41 हो रहा है। 41 हो रहा है ना, तो ये एक स्लाइड 2 स्लाइड ले लेते हैं जल्दी से। The number of major religions in the world is, how many religions are there in the world? Major religions? मैम 9। 8. 8 religions. In your book, in the first page of this chapter, you will get an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. ऐसा एक रीजन दिया गया, एक मिथ बनाया, सुपर स्टीरियोटाइप था कि मुस्लिम गर्ल्स स्कूल अटेंड नहीं करती हैं। लेकिन इसका रीजन जब ढूंढा गया तो एक ही रीजन मिला कि वो स्कूल छोड़ देती हैं या स्कूल अटेंड नहीं करती, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, लैक ऑफ विलिंगनेस टू गो टू स्कूल क्योंकि उनका मन ही नहीं करता है, नन ऑफ द अबव, व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन? मैम उनका मन नहीं करता। Poverty. Poverty. A1. Because of the poverty. Because A1. It is given in your book also. Okay. कि मुस्लिम फैमिलीज में गर्ल्स को स्कूल अटेंड नहीं करने दिया जाता ओनली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, बिकॉज दे हैव बिग फैमिलीज, सो मेनी अ टाइम्स they are not able to send their girl child to schools because they are not able to pay the fees. Third one, Dash community was treated as untouchables in the Bombay presidency. Bombay is the old name of Mumbai. Which presidency? Which community? Mahar. Yes, Mahar. This community is treated as untouchable. Dash is known as the leader of Dalits. कौन दलित leader थे? Who was known as the father of the Constitution of Indian Constitution? डॉक्टर भीमराव Yes, अम्बेडकर। very good. Dr. Bhim Rao Ambedkar. People of different religions have the freedom to practice their religion without any discrimination, which means India is a which type of country? When there is no religion? Secular. Secular. Well done. These are very small questions. If you go through the chapter, then only you will find the answers of these questions. Okay, अगर आपने जिसने भी पढ़ा है वो easily उसको make out कर सकता है. Shall I stop here or this one also? Shall I stop? Yes, ma'am. Okay, fine. Next time we'll do few more questions. Yes, extra questions are there. One more period is needed, beta. Okay, I'm coming back. Still I'm presenting. Okay.
Now, have you understood today's session? Question answers? Yes, ma'am. Okay. Now do all these questions. Yes, Question ma'am. answer लिखने की कॉपी है? Yes, beta, you have to write it down. Yes, ma'am. Okay. Come on. Let us end our session with Shanti part. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. सायरा मैम Sai Ram, beta. Saira, ma'am. Sai Ram. Ah, beta, you can leave now.